Hello, 10th standard. Let us go with our. Let us carry on our 10th chapter, that is the third chapter of geography, and 10th chapter in your textbook. Okay. Um, Already worked with 5 videos for this chapter, and this video will be my 6th video for our chapter number 10. So please see that you should not miss any video from this, okay, because it's very important. Okay, so we talked about cash crops in the last video, and today we will go on with certain technical and institutional reforms in agriculture. Earlier, farming was carried out by simple and ordinary farm implements like sickle, spade, hoe, that is plough, drill, plug, bullock carts, etc. Now modern implements have entered into it, of which tractor, trailers, rotavators, etc. are common. Beside, modern equipment like threshers and harvesters are used in the wheat harvesting. See, पहले जब फार्मिंग होती थी तो अर्लियर फार्मिंग वॉज डन इन ट्रेडिशनल वे, वी कैन टेल, like by using this sickle, spade, hoe, that is powder, drill, plug. See, ये सब एक मतलब इम्प्लीमेंट्स हैं, ये सब टूल्स हैं जो फार्मिंग करते वक्त यूज़ होते हैं. ओके, आई हैव ड्रॉन स्मॉल पिक्चर्स हेयर, इफ़ यू कैन सी. Understood? This is this kind of sickle, then spade, this kind of spade it comes. Understood? Okay. So पहले ऐसा होता था कि प्लगिंग एंड बुलॉक कार्ट्स के साथ एग्रीकल्चर करना, क्रॉप्स ग्रो करना. बट नाउ जैसे जैसे टाइम टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स हैव एंटर्ड इनटू इट, ऑफ विच कई मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स आ चुके हैं अभी फार्मर्स के पास, लाइक ट्रैक्टर्स, ट्रेलर्स, रोटावेटर्स एक्सेट्रा आर कॉमन. और वीट ग्रो करने के लिए, वीट कटिंग करने के लिए भी आजकल ज़्यादा टाइम नहीं लगता. लाइक मशीन्स, टेक्नोलॉजी इज़ सो फास्ट दैट विद इन 1 hour और विद इन फ्यू मिनट्स ओनली दैट मशीन्स कैन गो ऑन कटिंग क्रॉप्स फ्रॉम वन फुल बिग फील्ड. ओके, सो काफ़ी प्रोग्रेस हुई है टेक्नोलॉजी में. देन सिंस देयर इज़ एन इंक्रीज इन द यूसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, हाइब्रिड सीड्स, बीटी सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ड्रिप इरिगेशन एंड ग्रीन हाउस एक्सेट्रा. ना ही सिर्फ टेक्नोलॉजी में बट इंक्रीज किस में भी हुआ है, लोग, पीपल स्टार्टेड यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स इन मोर अमाउंट. They started using with hybrid seeds, BT seeds and insecticides, pesticides, drip irrigation, greenhouse etc. मतलब अपने एग्रीकल्चर को, अपनी क्रॉप को अच्छे से अच्छे ग्रो करने में they started with so many different activities. Understood? Nowadays seeds also comes in that way, like अच्छे से अच्छे क्वालिटी का सीड लेना और अच्छे से अच्छी तरह उसको ग्रो करने के लिए केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना. सो फार्मर्स गो ऑन विद सर्टेन दीज एक्टिविटीज़ एज वेल. नाउ टेक्निकल रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर में टेक्निकली कौन से चेंजेस आए हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. द चेंजेस विच हैव टेकन प्लेस इन सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड फार्म इम्प्लीमेंट्स इज़ नोन एज टेक्निकल रिफॉर्म्स. That is, see, we are talking about agriculture in this chapter. तो ऑब्वियसली यहाँ पर टेक्निकल चेंजेस हम एग्रीकल्चर के रिलेटेड ही करेंगे. क्रॉप को ग्रो करने के लिए टेक्निकली जो भी चेंजेस हुए हैं, दैट ऑल कंबाइनली कैन बी नोन एज टेक्निकल रिफॉर्म्स. Farmers who earlier used leather bucket and water wheel now uses submersible pumps and monoblock pumps, solar pumps, drip irrigation and sprinklers. So पहले वाटर करना पूरे फील्ड को was very difficult and time consuming work, but now with the help of these submersible pump, monoblock pump, drip irrigation, sprinklers,
सो इट बिकम वेरी इजी टू इरीगेट द होल फील्ड, पूरे फील्ड को पानी देना बहुत ही ईजी हो चुका है अब। Chemical fertilizers like D-ammonia phosphate, nitrogen, phosphorus, potash, urea and other biofertilizers, liquid biofertilizer, biotech seeds are used. So along with chemical fertilizers, people are even using with biofertilizers also. Understood? कई लोग chemical fertilizers use करते हैं और कई लोग biofertilizers they are using. Farmers are constantly guided through radio, television, newspaper, DD Kisan channel, SMS on mobile by the Kisan toll-free number, Kisan call center, government farm web portal, iKhedut and mobile app like Agri Market. See, farmers को गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्म कर रहे हैं वेदर में अगर चेंजेस होंगे, टाइमिंग में अगर थोड़ा चेंज करना है क्रॉप ग्रो करने के लिए एंड ऑल. ओके, राइट. प्रेजेंटली राइट नाउ इन we can tell presently now as as monsoon is going to begin, rice crop will be grown. अब राइस ग्रो करने से पहले इनफ वाटर चाहिए. अब इनफ वाटर now due to summer maybe underground level of water is declining, तो उसको लेवल पर लाएंगे, फिर फील्ड पूरे पानी के साथ ओवर वाटर करेंगे उसको, एंड देन फार्मर्स कैन गो ऑन विद ग्रोइंग राइस, राइट. तो उसके लिए भी मतलब गवर्नमेंट माइट बी डूइंग ऑल दिस, गिविंग इंफॉर्मेशंस टू फार्मर्स बाय all these channels here I can tell by all these sources. Okay, either you talk about mobile or you talk about television, newspaper और किसान चैनल, SMS द्वारा हर तरह किसान की हेल्प के लिए गवर्नमेंट रेडी रहते हैं. New agricultural researches and new technique are conveyed to the farmers in the village by ग्राम सेवक. तो ग्राम सेवक जो है, that is the villages are obviously more people, maximum people of villages depend on agriculture only. तो नई नई टेक्नोलॉजी, न्यू रिसर्च, जो भी टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के लिए हेल्पफुल है वो ग्राम सेवक उनको फार्मर्स को प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, सो दैट फार्मर्स कैन गो ऑन ग्रोइंग विद प्रॉपर क्रॉप्स. देन a farmer training center is established in every district headquarter wherein the farmers are given training. So there are certain training centers जहाँ पर farmers can take more training. See, खुद भी हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें अच्छे से ज़्यादा नॉलेज मिले कि किस तरह की सॉइल में किस तरह की क्रॉप ग्रो हो, तो वैसी अगर ट्रेनिंग कोई फार्मर लेना चाहे तो फार्मर कैन जॉइन विद ट्रेनिंग सेंटर्स. ओके. Recent information and guidance are provided to the farmers through agricultural fairs in Gujarat. गुजरात में खेडूत मेड़ो जिसको बोलते हैं, सो खेडूत का मेला भी लगता है गुजरात में, in which all farmers come and they get more and more knowledge about fertilizers, technologies, seeds, crops, soil, etc. Agricultural universities and agricultural colleges are established in every state. हर स्टेट में यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एस्टेब्लिश हो चुके हैं. एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ आर एस्टेब्लिश्ड इन दंतीवाड़, जूनागढ़, आनंद एंड नवसारी इन गुजरात. तो गुजरात में ये फोर प्लेसेस में यूनिवर्सिटीज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इज़ डेवलप्ड और सेटअप. These universities carry our research and prepares new experts in agriculture. तो ये यूनिवर्सिटीज़ जो है वो न्यू एक्सपर्ट्स और न्यू रिसर्च सेंटर्स खड़े कर रहे हैं, सो दैट एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो. ओके. देन बिसाइड्स दीज, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR and Department of Agricultural Research and Education DARE are active at national level. So national level में ये two we can tell fields हैं
जो एग्रीकल्चर के लिए लोगों को और फार्मर्स को हमेशा प्रोग्रेसिव पॉइंट्स बताते ही रहते हैं. ओके, नेक्स्ट this was institutional reform, sorry, this was technical reforms. Now we have to work with institutional reforms. Let us see the reforms connected with land ownership, crop subsidy and sale of farm produce are considered to be the institutional reforms in India. तो institutional reforms में क्या क्या इन्वॉल्व है? लैंड का ओनरशिप एंड देन क्रॉप में अगर किसी को सब्सिडी की सम डिस्काउंट रेट पर अगर क्रॉप ग्रो करना हो, देन सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस, फार्म में कितनी भी क्रॉप हुई है उसको कब कहाँ कितने प्राइस में सेल कर सकते हैं, ये सब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में इंडिया में इन्वॉल्व है. ओके, गवर्नमेंट हैज़ डिस्कार्डेड लैंडलॉर्डिज्म एंड स्टॉप द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स अंडर द लॉ ऑफ लैंड टू द टिलर, that is Land Tenancy Act. Now this act was passed in 1964. Okay, the land tiller have been given right to become the owner of the land. See, कई ईयर्स से अगर कोई लैंड पर काम कर रहा है, उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो फ्रॉम दिस एक्ट ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट स्टार्टेड मेकिंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू दैट पर्सन so that he can become owner of that land. Okay, the disparity among the landowner has been removed by Land Sealing Act 1976. So जो डिफरेंसेस दिखाई दे रहे थे लैंड ओनर्स में, लाइक कई बार होता है ना कि रिच फार्मर्स इवन परचेज अनदर फार्म बाय चीटिंग एंड ऑल, तो अब गवर्नमेंट एक फ़िक्स प्राइस देने लगे हैं कि अगर आपको फार्म सेल करना है या परचेज करना है, यू कैन गो विद दिस अमाउंट, सो दैट जो डिफरेंसेस होते हैं, जो फार्मर्स में अनबन हो जाती है, वो सब ना हो. फार्मर्स आर गिवन फाइनेंशियल हेल्प फॉर क्रॉप सब्सिडी बाय किसान क्रेडिट कार्ड एंड बाय नेशनलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव बैंक्स. तो फार्मर्स जो है वो फार्मर्स को गवर्नमेंट फाइनेंशियल हेल्प भी देती है, दैट इज़ फार्मर्स को अगर फार्मर्स के पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो उनको सीड्स या फर्टिलाइज़र्स चीप रेट पे भी अवेलेबल हो सकते हैं, नॉट इन ऑल द शॉप्स बट इन गवर्नमेंट शॉप्स. देन फार्मर्स आर गिवन फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन फॉर देयर क्रॉप्स थ्रू प्राइम मिनिस्टर्स क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम. तो अगर बाई चांस किसी की क्रॉप बहुत अच्छी ग्रो होते हो एंड इफ़ वी आर अफ्रेड फ्रॉम एनी नेचुरल डिज़ास्टर, सो टू मेक अवर crop secure from any disaster, we can even go with some insurance terms. Government provide that also. When the crop failed due to the drought or through excessive rain, farmers are given financial help by the government. अगर ड्रॉट होने की वजह से या बारिश ज़्यादा होने की वजह से क्रॉप ख़राब हो जाती है तो भी गवर्नमेंट फार्मर्स को सर्टेन अमाउंट तक हेल्प करते हैं. By providing legal support, an open auction process is made widespread for the sale of farm producing in the marketing yard. That is, अब marketing yard में मार्केट में अगर फार्म प्रोडक्शन को सोल्व करना है तो ऑक्शन सिस्टम पर भी सोल्व किया जा सकता है. दैट इज़ भाव प्राइस का बोली लगाया जाएगा, जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको वो क्रॉप मिलेगा. अंडरस्टूड. सो ये सिस्टम भी गवर्नमेंट ने किया है. दिस कैन गिव गुड इनकम टू वी कैन टेल फार्मर्स, राइट. देन फैसिलिटीज़ लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मार्केट एसोसिएशन, कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा. सो ये सारी फैसिलिटीज़, सी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, कोल्ड स्टोरेज, कम्युनिकेशन, दैट इज़ मार्केट के साथ हमेशा फार्मर को टच में ही रहना पड़ेगा कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, फार्मर शुड नो अबाउट दैट. ओके, तो ये सारी चीज़ें में हर वक्त फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ रेडी रखते ही है, राइट. वेयर हाउसेज मीन्स गोडाउन्स. देन फर्दर
have been provided so that the farmers would get the minimum support price of the farm product, so that farmers को थोड़ा support मिले, कम प्राइस में वो अगर अपना स्टॉक कोऑपरेटिव वेयर हाउसेज में रखते हैं तो उन्हीं के लिए अच्छा होगा। सो इस तरह से फार्मर्स को हेल्प भी करते हैं गवर्नमेंट। फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑपरेटिंग फॉर द परचेज ऑफ द फार्म प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फार्मर्स एट सपोर्ट प्राइस। सो ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अच्छे प्राइस में फार्मर्स से क्रॉप्स खरीदते हैं। विच आर दीज 3? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड ग्रोअर फेडरेशन इन इंडिया, देन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, सो NAFED, GROFED एंड NDDB। सो ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अच्छे प्राइस में डायरेक्टली फार्मर से क्रॉप्स परचेज करते हैं। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, बट बिफोर आई गो विद ग्रीन रेवोल्यूशन, सी दैट यू hear this video once again and understand technical reforms as well as institutional reforms. So next new topic we will continue from our next video onwards. Thank you.